So, good evening to all of you. Today, our topic is People and Banyan Tree, the confluence of culture and peace, how they are influencing each other. We have today the eminent speakers from all over the world as well as India, sir. To start with, I would request Professor Narayan, a chairperson, to enlighten us with the topic. Okay, thank you, thank you. I First of all I Welcome, sir. welcome Dr. A.K.Pandey ji, our very old um, patron and old well wisher to Society for Empowerment, and is always ready to support Society for Empowerment. Out of, just 1 second, I will take that is out of context. Yesterday, I had a meeting with the Chief Minister of Bihar, and the Chief Minister of Bihar, when he saw he has two, three, or four, five, say, flyer of our webinar, then he said, oh, Dr. A.K. Pandey, uh, Bihar cadre officer, he is always coming, so he has become a great academician. I said, no, no, he has not become, he is very great academician. And then he is another colleague, junior to him, who is now principal secretary to chief minister. He also uh, spoke very high about Dr. A.K. Pandey. So I welcome him in this program and hope that he will make, as he does always, a very fruitful contribution to this program. Then our another friend, my young friend, Professor Patnaik, is a former vice chancellor of Utkal University, just, just returned from Utkal to his parent department, Delhi University. And then we have Professor Ravi Medhankar. He is a chairperson of International Buddhist Mission and a well-known Buddhist scholar. And he is also practicing Buddhism because his work is throughout the globe, and he has a good number of, because has a mission, Buddhist international mission, so he has a lot of disciples throughout the globe. So we have all important persons today with us, and this program, because the Dalai Lama ji is in Bodh Gaya, and so this program is being watched by many Buddhists, and some part of it will be also uh, watched by uh, Dalai Lama ji. So they have put a television uh, set in Bodh Gaya, the place where he is staying, and in other on the roadside also, because Dalai Lama has a good follower, a huge follower, and only yesterday late night they served a notice of the formal to follow the formal say COVID COVID related all the formalities. So our program is today equally important because it is being watched by different uh, Buddhist pilgrims from different countries, as well as by another important dignitaries. So with these words, I welcome you all. And the theme, as Dr. Sharmistha mentioned, oh, one Yes. thing I forgot, that we have a good number of viewers on YouTube and Facebook. So I also welcome them because they always encourage us by asking some questions, and supplement. They sometimes they supplement us by their own opinion. So the questions answer session will be at the end of the program, as we always, as we have done in the past also.
or any observation from them, that will be also there at the end of the program. So uh, today I Yes, will sir. begin with in Hindi, because most of the I have got a lot of requests from Buddhists who want to understand English, but since they each year they come to Bodh Gaya, so they will be able to understand Hindi, not the hard Hindi, but sometime somewhat a spoken Hindi, uh, which they can understand. So from now onward, I will be sharing some of the points in Hindi for the understanding of the people. We have got some request, special request from them. So just to honor their request, we will go in Hindi, and our respected speakers, if they want to share something in Hindi, that will be much better. But English is okay for uh, some of the pilgrims, but not for all. So I will start just in Hindi. गया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारी संस्कृति में और हमारे इतिहास में रहा है, और वर्तमान समय में भी जब हम देखते हैं तो संस्कृति को बचाने का और संस्कृति को आगे बढ़ाने में गया का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। संभवतः इन्हीं कारणों से गौतम बुद्ध भी गया के पास जिस जगह को उन्होंने चुना और जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह गया से मात्र 8 किलोमीटर के फर्क दूरी पर है, जो पिछले वो पूरा 8 किलोमीटर जंगल रहा था। अभी भी उसके कुछ भाग जंगल के रूप में हैं, बचाए गए हैं, लेकिन कुछ उसमें से है जो उसमें शहरीकरण का हुआ है। शहरीकरण में अधिकांश तो वहाँ मंदिरें बनी है, और जो बौद्ध धर्म की मंदिरें हैं, बौद्ध संप्रदाय की मंदिरें हैं, वो बनी हैं। इससे तो इसलिए गया का हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में अक्षुण्ण योगदान है। वह संस्कृति का स्वरूप को बदलने में और संस्कृति के स्वरूप को बनाए रखने में, दोनों में ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और शायद अगर वो गया का विष्णुपद मंदिर नहीं होता, जो पूरे हिंदू धर्म के विश्व के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बोध गया नहीं होता या बुद्ध का ज्ञान वहाँ नहीं गया होता, वो कहीं और चले जाते, क्योंकि वो तो नेपाल की तराई से चल कर आए थे और वहाँ बोध गया पे रुके थे। बोध गया पे उनको बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए हमने रखा, आज का विषय रखा पीपल और बरगद का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष का अर्थात हुआ कि बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई। निर्वाण उनका जो ज्ञान का प्राप्ति हुई वो वहाँ पीपल के नीचे ही हुआ। हम लोग तो 60 के दशक में, अर्ली 60 में, 60 के प्रारंभ में ही साइकिल से हम लोग गया से बोध गया चले जाते थे, और तो वहाँ हम लोग ऊपर तक जो अभी बंद कर दिया गया वो खुला हुआ था, वहाँ जाते थे। और हम लोगों का बड़ा ही उस समय भी 70-80 के दशक में आते थे दलाई लामा जी, तो बहुत आसानी से हम लोगों से उनकी बातचीत होती रहती थी। अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ी शख्सियत हैं और उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु, उनके भक्त चलते हैं, और वो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है गया और बोध गया की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में। क्योंकि उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके बहुत महत्वपूर्ण लोग आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय धर्म के जो बाजार हैं, धर्म का जो स्थल है, उससे भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पूजा पाठ करते हैं, और अन्य कार्यक्रमों को, अन्य अनुष्ठानों को भी वो करते हैं। तो ये है कि इसलिए कहते हो। और वो बरगद का पेड़ इसलिए है कि बरगद के पेड़ के नीचे जो हम लोग पिंड दान करते हैं, जिसके लिए गया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिंड दान करने से हमारे पितरों का तर्पण होता है और उनको मुक्ति मिलती है, और वो उनको जीवन मरण के इससे
बंधन से छूट जाते हैं। संभवतः हो सकता है कि यह एक कारण रहा हो जिससे कि बुद्ध भी आकर्षित हुए हों कि जब वहाँ मृत मृत हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनका उनकी मृत्यु होती है, उनको हो जाती है, वो आवागमन से छूट जाते हैं। तो संभवतः हो सकता है कि इससे वो प्रभावित हुए हों और वो उन्होंने सोचा हो कि चलो हम भी वहाँ दे बैठते हैं और वहीं पे हम हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस उद्देश्य से भी वो वहाँ रहे। तो बौद्ध धर्म और को हम लोग जब देखते हैं तो हिंदू हिंदू धर्म के साथ जैसे सिख की चर्चा करते हैं या अन्य धर्मों की चर्चा करते हैं, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म की भी चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि बौद्ध और हिंदू धर्म में कोई जैसे गया और बोध गया के बीच कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। दोनों में कंटिन्यूटी है। जो कल्चर हिंदू कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत कंटिन्यूटी है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने में, प्रमोट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म में जो साधना का जो साधना एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे विपाशा भी लोग कहते हैं कि उसमें ध्यान लगाते हैं और कैसे कैसे अपनी शारीरिक क्रिया करके और अपने ध्यान को ध्यान के माध्यम से अपने धर्म का की रक्षा करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं और उसके अक्षुण्ण रखने के लिए उसमें विपासना और जो दूसरी जो आसन है उन आसनों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग करते हैं। और उन आसनों में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हम हाँ गया में विष्णुपद के आसपास भी जब तर्पण होता है, लोग आते हैं तो उस समय भी वो उस तरह से जब तर्पण करने की ओर जब वो मुड़ते हैं करते हैं तो उसमें भी जो जिस तरह से वो झुकते हैं या जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से वो तर्पण करते हैं, तो वो उसमें बहुत ही साम्यता अगर आप देखेंगे तो सूक्ष्म रूप से बहुत ही साम्यता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैसे भारत एक हो जाता है, चाहे वो दक्षिण भारत का रहा हो या आप कह सकते हैं कि हिंदू एक हो जाते हैं किसी भी देश से वो आए हों, लेकिन जब वो तर्पण करने के लिए आते हैं तो वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। सबका पहनावा एक होता है, तो सबकी संस्कृति एक होती है, सबका भोजन एक होता है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं होता है कि ये भारत का हिंदू है और ये आपको ऑस्ट्रेलिया से हिंदू आया है या नीदरलैंड से हिंदू आया है, तो ऐसा नहीं होता है। सबको एक समानता होती है। और जो भी आप देखेंगे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, तो जब वहाँ पे अभी आए हुए हैं दलाई लामा जी, तो देखिएगा सबों का ड्रेस एक ही तरह का है, सब एक ही तरह से भजन गाते हैं, सब एक ही तरह से अपना वो बजाते हैं चक्र का और चक्र की पूजा भी वैसे ही करते हैं। तो ये जो साम्यता है, यह साम्यता हमारी संस्कृति की, भारत की संस्कृति की खूबी है। और ये जो और इस ये हमारे हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुआ है और उसी से जो विभिन्न शाखाएं बनी हैं उसी शाखाओं का के अनुरूप वो होता है और उसकी पूजा होती है और लोग उससे बाहर दूसरे देशों में भी इसे इसको अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हुए हैं अभी तक, आज के दिन तक। और ये तभी संभव होता है जबकि एक रूपता होती है और वह एक रूपता संस्कृति की एक बड़ी खूबी होती है, कल्चर की एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कल्चर has played a very important and strong role in preserving and promoting the Indian culture and civilization. अदरवाइज ये तो अलग अलग मतों के मानने वाले अपने आप को अलग अलग मानते तो फिर वो नहीं हो पाता, वो इंडियननेस या जो वो बुद्धिस्ट का, जैसे हमारे साथ हमारे बुद्धिस्ट मिशन के चेयरमैन साहब हैं, तो वो हमसे ज़्यादा इस विषय पे प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन एक समय में ये भी बोध गया में प्रोफेसर रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोफेसर रहे और बौद्ध धर्मों को, बुद्धिस्टों को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। और आज भी ये
अपना संबंध बरकरार रखे हैं। समय समय पर ये वहाँ आते रहते हैं और इनका अपना कार्यक्रम सब चलता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पीपल और बरगद का पेड़ है, जैसे दोनों ही वृक्ष हैं, दोनों ही हमारे पर्यावरण और जो हमारे पर्यावरण की के संरक्षक हैं और पर्यावरण को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जैसे बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष मिला, वैसे ही गया में तीर्थ करने से जो वहाँ पूजा करते हैं अपने पितरों की, तो उसमें भी उनका भी, उन लोगों के भी जो मित्र जो उनके डेड एंसेस्टर्स हैं, जो पुराने हैं, उनका जब वो पितृ तर्पण करते हैं तो उनका भी वैसे ही मोक्ष होता है, वो आवागमन से छूट जाते हैं और उन्हें फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसी मान्यता है, ऐसी कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं। और उन कथाओं को हम लोग कहते हैं कि वो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन हम लोग जो कहते हैं मानव शास्त्र में, तो ये दोनों ही ग्रेट ट्रेडिशन के एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही जगहों पे लिटिल ट्रेडिशन के एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारे डेफिनेटली। लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और जब कभी हम कहते हैं कि हमारे हिंदू सभी हिंदू एक तरह के हैं, भले ही उनमें जाति की अलग अलग अवधारणाएं हैं और अलग अलग जातियां हैं, परंतु जब वो गया में तीर्थ पे जब वो जाते हैं पिंडदान करने के लिए, तो वो जातियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वो महत्वपूर्ण होता है कि वो हिंदू हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, हमारे देश को, इस पे भी जब हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं देश के विकास के लिए, देश की संस्कृति की संरक्षण के लिए, तो उसमें भी इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि अगर जब हम देश के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए हम जब पॉलिसी बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, तो उसमें धर्म को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हम जो भी कोई डेवलपमेंट का प्लान बनाते हैं या जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसमें हम धर्म को बिल्कुल किनारे करके बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। धर्म का भी जैसे आप कोई इस तरह का अगर कंट्री का डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं और उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने खुद ही देखा है कि नासा में जब सैटेलाइट को उड़ाना रहता है, छोड़ना रहता है, तो उस समय नारियल फोड़ा जाता है, फूल छत चढ़ाया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और वो भी करने वाले वहाँ जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ब्राह्मण्स हैं, पंडित जी हैं, वो जो इन सब चीज़ों को करते हैं। यहाँ हमारे साथ अभी डॉक्टर A.K. पांडे हैं जो फिजिक्स में बहुत ही अच्छा फिजिक्स के जानकार हैं, विद्वान हैं, और इन्होंने नार्लिकर साहब के साथ PhD की, प्रोफेसर नार्लिकर के साथ, तो उनका अपनी अपनी अवधारणाएं हैं और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने उसमें किया है। वैसे ये प्रशासक रहे, IAS रहे Yes, हैं, sir. Yes, sir. तो ये पॉलिसी के भी Yes, I अच्छे definitely agree with जानकार you, हैं। sir. Yes, sir. Culture and this is correlated, sir, along with traditions and customs. So I would request Dr. Pandey, sir, in case you can, यस enlighten यस, us a little bit on the topic. Yes, sir. हाँ, डॉक्टर A.K. पांडे साहब, प्लीज यू ओह, शेयर योर व्यूज। धन्यवाद प्रोफेसर नारायण। आज का विषय तो सीधा साधा हमारे वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष के धार्मिक समन्वय के बारे में है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज जो जुड़ी हुई है, हम लोगों के विचार का विषय वह है, और वह यह है कि इन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने, जो चिंतक उस समय के थे, उसे मानवीय जीवन से पवित्र कह करके, जरूरी कह करके जोड़ा था। और वह एक सोचने का बिंदु है कि वृक्ष तो सभी हैं, सभी के लिए कहा गया है कि वृक्ष लगाना बड़ा पुण्य का काम है। यद्यपि
बीच में देश में एक ऐसा युग आ गया था जबकि धार्मिक जितनी भी बातें थी उस सब को पोगापंथी कर करके टाल दिया जाता था। लेकिन लंबे तौर पर आज हम देखते हैं कि वे सभी चीजें एक तरह से वैज्ञानिक अवधारणा पर खरी उतर रही हैं और सरकारी नियम कानून उसके पीछे चल रहे हैं कि उसी को चलाया जाए। नहीं तो वृक्षारोपण की जो आज योजना चल रही है वह हमारे यहाँ लोगों ने कितने दिन पहले से सोच रखा था कि हरा वृक्ष काटना महापाप है, वृक्ष लगाना बहुत अच्छी चीज है। पीपल का वृक्ष बिल्डिंगों को, घरों को उसमें उग जाता है, तोड़ता चला जाता है, लेकिन कोई भी हिंदू उसको काटने को तैयार नहीं होता है। ये सब चीजें हमें अपने पिछले दौर को समझने और उस पर चिंतन करने के लिए है। महात्मा बुद्ध सभी जगह से आए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। इसके पीछे आखिर कोई चीज है या नहीं है? मैं ये कहना चाहूंगा कि यद्यपि मानव जाति बहुत पुराने समय से यहाँ है, शायद जो अभी उपलब्ध इतिहास है 5000 साल का, थोड़ा बहुत जानकारी उसके बहुत पहले से है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी कभी सोचिए तो क्या यह संभव है कि जो ज्ञान पिछले 100-200 साल में विज्ञान ने प्राप्त किया वह एरा कभी पहले नहीं आई हो? पहले भी लोग सोचते होंगे, उन्हें दिमाग था, एक दूसरे से बात करते हैं। मेरा एक विचार है या बहुत से लोगों का विचार है कि उन्होंने जो चिंतन किया और उससे एक जीवन पद्धति उन्होंने पैदा की, वह जीवन पद्धति प्रकृति के साथ समन्वय के साथ रहने की थी और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उन्नति करने की थी। शायद इसी में की एक कड़ी यह भी थी कि पीपल और बरगद के वृक्षों को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है? हम लोग अभी प्रोटेक्ट करते हैं पेड़ों को तो उसके चारों ओर घेरा बना देते हैं, कोई जाए नहीं उस पर, कोई पशु न चरे। लेकिन उस समय के ऋषियों ने बड़ा नायाब चिंतन किया। उन्होंने उसको मनुष्य के एम्बिशन से, उसकी इच्छाओं से जोड़ दिया। जैसे कि शनि के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में, माफ कीजिए, पीपल के वृक्ष में शनि का वास बताया गया और जिस पर भी शनि की दशा चलती है उसे आप देखिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता है, परिक्रमा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके दुख कम हो। उसी तरह से जो विवाहिता औरतें हैं वो वट वृक्ष के चारों ओर उसको क्या नाम उसका है, वट सावित्री का व्रत रख करके उसके चारों ओर सूत लपेटती हैं। इस दोनों का मतलब यह है कि आपको अपनी नजर के आसपास इन वृक्षों को रखना है और इन्हें जीवित रखना है, इन्हें जल चढ़ाना है। वृक्षों को, वट वृक्ष को सूत से बांध देने से उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और वह बहुत दिन तक रहता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे पुराने वृक्ष वट वृक्ष ही है, क्योंकि उनकी नई नई जड़ें उन्हें नया जीवन देती रहती हैं और वे बढ़ते चले जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं जब तक जानबूझ करके उसको काटा नहीं जाए। खोज करने पर सबसे बड़े वृक्ष मिल जाएंगे जो हजारों साल पुराने हैं। तो क्या उन हजारों साल पहले का जो ज्ञान था हमारे आज के ज्ञान से इंफीरियर था या कमजोर था? मुझे नहीं लगता है, इस नाते नहीं लगता है कि तक्षशिला और नालंदा के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो ज्ञान के बड़े केंद्र हैं,
उनके बारे में हम सिर्फ जानकारी रखते हैं, पढ़ते हैं, और यद्यपि आक्रांताओं ने उन्हें नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की, उसके स्थान पर नई शिक्षा पद्धति लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके जो आधे अधूरे पन्ने कहीं न कहीं मिलते हैं, उनसे यह पता चल जाता है कि उनका चिंतन भी आज के नासा से और आईआईटी से कम आधुनिक और ज्ञानपूर्ण नहीं था। उन कहानियों से इसका ज्ञान मिलता है, लेकिन फिर भी आक्रांताओं का जो प्रचार प्रसार था उसको फैलाने, अपनी संस्कृति को फैलाने का और हमारी परंपरागत संस्कृति को बदलने का, उसमें यही दिखाया गया कि ये सब ज्ञान पुराना है, यह कभी नहीं मिल सकता है। मॉडर्न साइंस यह है, आदमी को ऐसे रहना चाहिए। लेकिन आज जब हम उस तरह से रह रहे हैं तो बहुत जगह पर हमें कठिनाइयाँ हो रही हैं। न तो वह औषधि का सिस्टम हमें पूरी तरह से स्वस्थ रख रहा है, न तो वह जीने का सिस्टम हमें पर्यावरण को सुरक्षित रख रहा है, और इसलिए एक चिंतन हमें अपने उस पुराने युग के बारे में करना पड़ता है। उसी युग की बात है जो आज महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें ज्ञान वट वृक्ष के नीचे, उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। इसका दूसरी तरफ से आप देखें, उन्होंने ज्ञान पाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की। पीपल के वृक्ष में ऐसी क्या खास बात है जो उसको चुना गया? यह संयोग की बात नहीं है कि पीपल का ही वृक्ष वैज्ञानिक रूप से माना जाता है जो दिन और रात दोनों में ही प्राणवायु का उत्सर्जन करता है। बहुत कुछ यही गुण वट वृक्ष में ही है, और इसीलिए ध्यान लगाने के लिए जिसमें 24 घंटे बैठना था, उसे संभवतः महात्मा बुद्ध ने चुना अपने चिंतन के लिए, ताकि रात में जब और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, इसमें रह करके अधिक समय तक स्वस्थ रहा जा सकता था। मैं पीपल और वट वृक्ष के बारे में इसे संस्कृति से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि हमारे जो विष्णुपद मंदिर है और दूसरे और जो मंदिर हैं, उनका बहुतों का उम्र नहीं पता है। दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनका भी कितने भी प्राचीन है, ठीक से हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। कहीं से शुरू हुआ, कहीं खत्म हुआ, लेकिन अपने साथ उन्होंने ज्ञान का एक संचय अवश्य रखा, और उस ज्ञान को प्रिजर्व करने वाले जो भी ब्राह्मण थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने अपनी जान दे करके भी उसकी रक्षा की। सोमनाथ मंदिर का उदाहरण हम लोगों के सामने है। कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी मूर्ति थी जो कि अधर में लटकी रहती थी, वो कहीं से जुड़ी हुई नहीं थी। ऐसा उस समय के ग्रंथों में मिलता है। लेविटेशन की यह जो टेक्नोलॉजी है आज भी उपलब्ध है, लेकिन अभी उस परिपक्वता को नहीं प्राप्त हुई है कि उस मंदिर में फिर से स्टैब्लिश लगाई जा सके। अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें लगातार बिजली की जरूरत होती है, जबकि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वह पत्थरों से जुड़ी हुई कोई चुंबकीय शक्ति थी जिससे वह मंदिर वहां रुका रहता था। मैं विषयांतर के लिए इसलिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि जब हमारा तक्षशिला और ये अपने चरम पर था नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आया। मैं मानता हूँ कि ये दोनों जो भी केंद्र थे शिक्षा के, धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म आया तो उस ज्ञान के भी केंद्र यही रह गए। हमारी संस्कृति में यह एक गुण है कि हम परिवर्तन का स्वागत करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से हम कभी नहीं डरे, और जो भी हमारे बीच में अंतर आता था चिंतन का,
वह बातचीत से सुलझा लेते थे, और जो नई बातचीत आती थी, नया निष्कर्ष निकलता था, उसे ही नया ज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ते थे। तो बोधि वृक्ष और पीपल वह एक उदाहरण है। ऐसे कितने सारे चीजें हमारी परंपराओं में मिलती हैं जो यह बताती हैं कि उस समय का ज्ञान आज भी उतना ही वैलिड है, उतना ही सही है। मेरे एक परिचित थे जियोलॉजी में, उन्होंने एक शोध पत्र लिखा था कि जिन जगहों का नाम सोन से है, सोनभद्र, सोन नदी, सोनबरसा, उन सब जगह सोना मिलने की संभावना है। क्योंकि आखिर प्राचीन काल में नाम रखे क्यों गए? वह शायद इसीलिए कि वहाँ उनका ट्रेस मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, और बाद में मिलना बंद हो गया क्योंकि हायर टेक्नोलॉजी नहीं थी उसे निकालने की। आज जब फिर हम खोजते हैं तो उन जगहों पर वो चीजें मिलती हैं। और सोनपुर हुआ, सोनभद्र जिला हुआ, इस सब जगह हम देखते हैं कि सोना मिल रहा है। उसी तरह से ये जो ऑक्सीजन उत्सर्जन की बात है पीपल और बरगद से, यह भी हमारे पूर्वजों को ज्ञात था, और इसीलिए इन्होंने उसे अत्यंत पवित्र वृक्ष कहा और उसे आसपास रखने की नसीहत भी दी, और ऐसा मैकेनिज्म पैदा किया कि जिससे हर परिवार अपने को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता था। बीच में जो भी परिवर्तन आए हो, यह बड़ी खुशी की बात है कि ऊंचे स्तर पर आज के जो वैज्ञानिक हैं, आज के जो शिक्षाविद हैं, इस पर एक नए सिरे से फिर से विचार करते हैं कि हमारा जो परंपरागत ज्ञान उस समय का था वह कितना सही था, और उसको हम क्या पुनर्स्थापित कर सकते हैं। उसी तरह से उसमें हमें बहुत सफलताएं भी मिल रही हैं। मैं यह जानता हूँ कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उसके बाद Yes, sir. धर्म में भी Yes. तर्क और शास्त्रार्थ का बड़ा महत्व रखा जाता है, और यही शायद एक मूल बिंदु था जो हमें अपने को और धर्मों से अलग बताता है, जिनमें कि तलवार के बल पर धर्म बदलने की चीज है। मुझे लगता है कि इस पर आप सभी ने अब तक काफी चिंतन किया होगा और शायद कुछ बताना भी चाहते होंगे। मेरे थोड़े ज्ञान में एक तरह की खासियत है कि ब्राह्मण होने के नाते मुझे प्राचीन हिंदू ग्रंथों और उस इतिहास में हमेशा रुचि रही है, और आधुनिक विज्ञान में नाभिकीय भौतिकी में डॉक्टरेट करने के नाते आधुनिक विज्ञान के बारे में भी मैंने पढ़ा है, और जब भी उसमें मैं समानता देखता हूँ तो हृदय में एक तरह की खुशी मिलती है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि का ज्ञान किस ऊंचाई पर था और हम कहाँ से चले थे। हमारा धर्म और धर्मों से अलग संश्लेषण पर बना है। ये थीसिस नहीं है, सिंथेसिस है। एक दूसरे के मनोभावों को सुनना, एक दूसरे के ग्रुप में मिलना, एक दूसरे से विचार विमर्श करना और उसमें से सत्य को खोजना और उसे फिर सारे समाज पर लगाना। और इसी सत्य का एक उदाहरण महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने जो चिंतन किया, जो यहाँ से पाया, उसे सारी दुनिया को बताया और हमें एक नई रोशनी दिखाई जिसने सारे विश्व में लोगों को अपने पीछे आने को मजबूर किया। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ था बुद्ध की शरण में। संघम शरणम गच्छामि का मतलब संघ, यानी सबसे मिल करके। और धम्मम शरणम जब गच्छामि मीन्स धर्म,
धर्म का मतलब कर्तव्य, कर्तव्य के साथ का पालन करना। मेरी छोटी समझ में जो है वह यही इतना था जिसे मैं आपसे बांटना चाहता था, और मुझे बड़ी खुशी हुई आप सबने इसमें हिस्सा लिया। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Now, I would request Professor Ravi Medhankar, sir, can you just enlighten us with the topic little bit? क्या कहो तो तुम्हारे में भेजें, यही इसकी बैटरी खत्म हो रही है। Medhankar, sir, am I audible? Mm-hmm. Sir, can you enlighten us with the topic, please, sir? I hope I am audible. आपको सुनाई दे रहा है, sir? Yes, yes, you are audible. Yes, sir. Can you please continue, sir? I have to speak now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. This is telling you are at backstage. Only the host can see you. So, what is the problem? Again, that problem started. Yes, sir. The connectivity problem is there, sir. But I think we can listen to you now, sir. आप शुरू कीजिए, sir. Okay. So, all the two scholars have already defined about the banyan tree and this. The two trees, the most important is environmentally. This is the only tree, as they explained, that gives you the oxygen throughout day and night, while the other trees they give only in the daytime the oxygen. So that is the one importance of this tree. But in the Buddhist scripts, when you go through the all the Buddhist script, you will find that this is the tree place. There is another seat where the Buddha sat there, that is a stone throne. And he, if you come to know that the Buddhist text, it is telling in the Pali, Echa Buddha Atita cha Echa Buddha Anagata Pachupannach E Buddha Aham Bandami Sabveda. That means this is not the first Buddha. Before this Buddha, there is also Buddha. Before this Buddha, which is we know as a Gautam the Buddha. So there were previous Buddhas, and there will be some people will be coming like another Buddhas. Maybe Dalai Lama also gets enlightenment. He can be also a Buddha, or other people. Anybody who follows the path of Buddha, he can become a Buddha. There are paths, and for coming to, suppose you are coming to Bodh Gaya, you have different paths. You are coming to different ways. You can also the means of transportation you can use. You can come by airplane, you can come by bus, you can come by on foot. So there are many ways you are coming, but there are ways that a uh, path forward that has been defined by this Gautam the Buddha. So Buddha already, if you go all the through Buddhist scripts, then you will find that Buddha already explains that he followed the path of the previous Buddhas, then he became a Buddha. So, and when you come to the Bodhi tree, that is the place where whoever becomes a Buddha, he will get the enlightenment under the same tree. And Buddha, the Gautam, the Buddha also followed the same way, and he comes to this under this tree, and he is able to get the enlightenment. So this is the most important for the Buddhist world.
And actually, the Dr. Narayan tell that there is a Buddhism has no confliction with anyone, any religion. Yes, sir, there is a connectivity problem, sir. Uh, so that I think there is some connectivity problem. So in case I can request SM Patnaik to continue, we can come back as soon as we get connected again. Uh, SM Patnaik, sir, are you online, sir? SM Patnaik, sir? Hello? Yes, yes, I'm here. Yes, sir. I think we can continue with you. Acha, I think he's there back, sir. So sorry to interrupt. Sorry, And sir. There was. Yes, sir. okay, I think there is some trouble again. So, okay, I will stop here. Let the other scholars. So, most No, no, important sir. thing is that under this tree, if whoever is coming for the Buddhism, he becomes the Buddha. He will come under this tree. And there was a Japanese guy. His name was Asoko Asahara. He knew this fact and he come to the tree because the people in Bodh Gaya, they know this story very well, and he sat under that tree, and he wanted to prove that he has got the Buddha's enlightenment power. So later on, the police and other forces let him go out from the Buddha Gaya. Now he is no more, but he belong from Japan. So Asahara is very famous for that action in Japan. So this is very important. Let other scholars to come continue. And the most important of the both the trees is that they have 24 hours that excretion of the oxygen, which is the lifestyle. Thank you. So I think some troubles are coming up. So let's see, and everything goes well. Bhavatu sabu mangalang rakkantu shabba devata sabuddhanubhavena sabdhammanubhavena sabsanghanubhavena tada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Be happy. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, SM Yes, Patnaik, please sir, can you continue. request? Sometime it cut up. I'm sorry that some systems are very different. Anyway, go ahead. It is a very nice chapter and subject. Yes, sir. Thank you, sir. Sir Patnaik, sir, can we start, sir? Yes, yes. Adarniya Sri S. Narayan ji, Dr. Pandey, and Ravi ji Medhankar, आज की ये जो चर्चा पे मुझे शामिल होने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रोफेसर नारायण को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट की जो ये प्रशंसनीय प्रयास, इसको भी मैं हृदय के साथ स्वागत करता हूं। हमारे सामने दो मेटाफर है। There are two trees around which we are revolving our discussion. One is people, Aswasth. The other one is the Banyan, the Vat Vriksha. और इन दोनों को हम विश्व शांति और हमारी जो सनातन धर्म की जो अनुभूति, उसकी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा को सीमित रखेंगे। इसके ऊपर जो ज्ञान है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, they are from different systems of knowledge.
Some of the systems of knowledge are cosmological knowledge, some of them are archaeological, some of them are astrological, and some of them are anthropological. So I would try to situate my discussion around these few domains of knowledge production. अगर हम कॉस्मोलॉजी को देखें तो पीपल या अस्वस्थ को हम मानते साक्षात वासुदेव, regarded as the tree of consciousness, the incarnation of Trinity, and also the tree of gods, regarded as abode of goddesses Vishnu and Lakshmi. और ये इसका जो botanical नेम है फाइकस रिलीजियोसा, it's not confined only to Hinduism. It transcends Hinduism and goes to Buddhism, Jainism, other world religions. There is no limit of the ficus religiosa, that how a tree connects the humanity with religion. On the other hand, we have the Bat Vriksha, Ficus bengalensis, regarded as the Kalpa Vriksha, the wish fulfilling plant, tree. I come from Odisha, and in the Jagannath temple, the 1,000-year-old Jagannath temple, you have a Kalpabata. People come from different parts of the world to tie a thread so that the wish is fulfilled. Banyan tree is also regarded as the abode of Lord Krishna. And quite paradoxically, oxymoronically, this is also regarded as or connected to the god of death, Yamraj. And therefore, the whole dialogue between Savitri and the Yamraj took place around this particular tree. And that is why the Bhat Savitri, Satyavan, died near this tree and became eternal with this tree near that abode. Associated with god of death, but at the same time associated with eternity, the eternal life, the wish fulfillment of Savitri. And therefore, there is a strong religious cosmology emanating from the Hindu Sanatan tradition, linking these two trees with human experiences. Now let's go to the archaeology. We find Mortimer Wheeler in 1920s, 100 years before, who studied the Indus Valley civilization and found out about this civilization 2500 BC to 1700 BC. There were seals containing the image of people. And amidst the branches of people, the gods were installed. And people who were kneeling down and worshipping the god who is sitting on the peepal tree. 4,000 years, 4,500 years before, Indus Valley civilization clearly depicted that how peepal tree was truly ficus religiosa. And therefore, the significance of this is not something which we invented it. It was there 5,000 years before, archaeologically. And today, when we stand, the Hindu calendar says that today is the Posha Krishna Amavasya. And on Jyeshtha Purnima, the Vat Savitri is always celebrated. Dr. Pandey talked about astrology, brilliant connection between astrological knowledge system and this importance of people. शनिवार को जलाभिषेक की बात की है. Medical astrology also tells that there are ethno-medical properties within the people. Asthma, epilepsy, eye disorder,
They are all cured. The moment you worship people, you take their ingredients in different forms. Ayurveda, medical astrology, they all revolve around the importance of people with special reference to health and well-being. And Ravi ji ने तो ऑक्सीजन के बारे में बोला, in terms of mental health, in terms of peace, in terms of meditation, how they provide a very, very conducive, vibrant space. Now, coming to anthropology, Professor Narayan has been my senior, अग्रज है हमसे, और उन्होंने कहा लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, बहुत ही चमत्कार लिंकेज, a very, very fantastic linkage he established. And that draws me to one of the concepts which Professor Vidyarthi talked about, nature man spirit complex, how human beings are connected with nature and they are also connected with the spirit. And these two trees tell us the best example that how human beings are connected to nature through these trees. There are many sacred groves, indigenous communities, they worship their gods and goddesses in the sacred groves. In many cases, these sacred groves, there are sal trees, there are other trees, but also there are this ficus religiosa and also the banyan tree. So it is not only one or other tree, but these trees are also included into this particular sacred space. Among the Bhils, there is an there is a folklore that the men, I mean, some of the ancestors, they have become protected from the wild animals by living in these sacred grove. Having said this, having discussed the idea from cosmology, from archaeology, from medical astrology, from anthropology, let me conclude that what emerges from this kind of discussion. I think when we talk about these two trees, they are really global trees. They are really all encompassing trees. And they are global, all encompassing in the sense that they get connected to all aspects of human experiences: spiritual, material, medical, and cultural, emotional. And therefore, we find that the trees, they belong to the entire world, but it is our Sanatan Dharma which has recognized it since time immemorial. And there comes the entire value of Indian civilization. Now, if you go back to Bhagavad Gita in chapter 10 and verse 26, Lord Krishna says, when he is showing the Vishwaroop, he says that among all trees, I am the Ashwast. If you compare any of the trees and try to search the divinity, Krishna himself admits that among all trees, I am the Ashwast. I am the people. And he also talks about, at a different place, he talks about the banyan tree. Here he is comparing. Now I'm coming to the philosophical aspect dealing with this banyan and people tree. Now, Lord Krishna says that the world, the material world, is like an imperishable banyan tree with its roots upward. It's an olot bruksha. It's like a tree which is upside down, the whole world. And if you stand on near a water body, you will find that the trees look upside down. But the water body, the reflection is not real. The reflection is not real. And therefore, he says that this is the best metaphor to understand the distinction between materiality and spirituality. And that is what Lord Krishna tells us in the Gita, that the material world is a reflection of the spiritual world by telling us that the shadow
This material world is a shadow of the real world. And shadow is not reality, but shadow is a means to understand the reality. जो नदी में उलट वृक्ष की जो इमेज हम देखेंगे, उससे हम समझ सकते हैं कि ओरिजिनल वृक्ष कैसे दिखता है. रवि जी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि there were many Buddhas before the Gautama and after the Gautama. And Peepul tree is the witness to it. Peepul tree is 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 not like a immobile plant. It's not like an immobile tree. It reflects a flow, an eternal flow, a flow of consciousness, a flow of divinity. And within that flow, there are many Buddhas, and one of them is Gautama the Buddha. And finally, we also should not forget that when we talk about this people tree and this banyan tree, and where the Vat Savitri is enacted, it reminds me, with which I will conclude, the whole local tradition, the little tradition of Vat Savitri reminds me of the epic which Mahayogi Sri Aurobindo wrote, the Savitri, the myth and a legend, the myth and a symbol. And there he narrates how, centering around a cosmic banyan tree, the dialogue between Savitri and Yamaraj is taking place. And finally, Savitri wins, and it brings immortality to this world. And this material world becomes the divine world. This material world becomes the spiritual world. And that is called life divine. And there we have all these metaphors. And that is where India is awaiting for a great experiment where the synthesis between materiality and spirituality is enacted on this soil, on this Aryabhat, on this Jambudip. Dhanyavad. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much, sir. Yes, sir. Professor Narayan, would you like to contribute something, sir, before we conclude the session? I think we are getting good comments from the Facebook user also. इन्होंने कमेंट दिया है कि आज के इस विकसित समय में अभी भी ये कहे हमारे धर्म के प्रारंभ से ही वृक्षों को हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और शुरू से ही हुए. कोई भी रीति रिवाज को उसे पीपल, बरगद, तुलसी का अपना महत्व है. पीपल और बरगद वृक्ष के नीचे ही बैठकर आराधना करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं. जीवन हेतु ऑक्सीजन हमें इन वृक्षों से ही मिलता है. थैंक यू सो मच, सर. इट्स अ लवली कमेंट फ्रॉम अ फेसबुक यूजर. I think they are also appreciating our live program. So, anything else, sir, you want to conclude, and so that we can give a vote of thanks to all of the speakers? Yes, sir. Give the vote of the Definitely, sir. First, I would like to thank you, sir, Professor Narayan, for giving us the importance of the people and banyan tree. Definitely, they are so interrelated to our culture, customs, and traditions. Uh, Dr. Pandey, sir, he has given the medicinal use, and he has even, interlinked with the culture of India. I think he is there. Ravi Medhankar, sir, he gave a most distinguishing feature which even I did not know, that banyan and peepal tree give out oxygen day and night. So that I found to be a very different, phenomenal comment from the other viewers. And last and not the least, Patnaik, sir, he linked these two trees with culture, customs, and traditions and divine humanity. So thank you so much, sir. And last and not the least, I would also thank the Facebook user as well as the YouTube people who are there and appreciating and giving us the comments live so that we can view. I think our program was really great. Thank you so much. Thank you to all of you, sir. Namaste. Well, Thank you, everybody. Be happy. Thank you. thank you, Thank sir. you very much.